Hello friends, I am Dr. Satkala. Today I am presenting my lecture on voice. If we're talking about voice, here are the two parts of voice, active voice and passive voice. What is the difference between the active voice and the passive voice? If we're talking about the name active, that is indicate here the subject is the doer, active doer. And in the passive voice, here the subject who is passive, not the active doer. So according to the who is the doer in the active voice and in the passive voice. So today I will discuss on voice, active voice and the passive voice. First of all, we will discuss about the voice. Voice is that form of the transitive verb that shows whether the subject of the sentence is the doer of the action or has the action done to it. This is the transitive verb voice. Active voice and passive voice. We divide in two parts, active voice and the passive voice. In active voice, for example, I write a letter. Here, I, the subject, who is the active doer. But in the passive voice, when we will change in passive voice, then how we will change? In a letter is written by me. Here, the subject who is passive, not the active. So, the form of the transitive verb here shows that the subject of the sentence, who is the doer in the active voice, is the active doer, and in the passive voice, it becomes the passive. So, this is the active voice and the passive voice. In this lecture, I will discuss about what is the how we can change from active to passive voice. Mainly when we change from active to passive voice. For example, I take this example, the active and the passive voice. Here I, who is the subject, write, here is the main verb, a letter, here is the object. When we change from active to passive voice, a letter that will become subject in the passive voice. So our first rule I will explain in slide also, but here on the base of that sentence it will be easy to understand for you. Here are only 5 rules from active to passive voice when we change from active to passive voice. जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो 5 मेन रूल्स इसमें रहते हैं. एक एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है दैट बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस एंड लेटर बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस. आफ्टर दैट यूज ऑफ द टेंस इज. Because the sentence I write a letter, it was in simple sentence, simple present, and after that simple present change in the present continuous. So is that according to the tense we will discuss in further PPT in further slides that how to change from which tense will change in the which tense. So second rule, that is use of the tense, and third use of verb, मेन वर्ब रिटन ऑलवेज इन पास्ट पार्टिसिपल. हमारे जब एक्टिव से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑलवेज जो है V3 का यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, चाहे कोई भी टेंस हो कुछ भी हो. जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इज है, इसके साथ में भी रिटन ऑलवेज V3. थर्ड रूल हमारा क्या हो गया, यूज ऑफ मेन वर्ब as in past participle. And fourth one is use of by. बाय का यूज हम मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस में करते हैं. कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे कुछ में टू का है, सेट द डोर शुड बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन, है ना. इस तरीके से कुछ में है, लेकिन मोस्ट ऑफ में हम बाय का यूज करते हैं. एंड आफ्टर दैट लास्ट वन
I became me, I, my, me. There is also some pronoun that change. I will change in me, he will change in him, she will change in her, they will change in them. So this is the main, our main focus will be on 5 change from active to passive voice. 5 हमारे मेन है जब हम एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. फर्स्ट, एक्टिव वॉइस का object became the subject of passive voice, use of tense and always v3, use of by, and subject of the active voice became the object of the passive voice. So here are only 5 main changes when we change from active voice to passive voice. Subject change in object, object change in subject, use of टेंस अकॉर्डिंग टू द एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो टेंस का इफेक्ट रहता है कि कौन सा किस में, ये हम फर्दर स्लाइड्स में करेंगे. और जो है बाय का हम यूज करते हैं और हमेशा पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब में यूज करते हैं. वर्ब की फॉर्म ऑलवेज v3. रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वॉइस. Rules for the change of voice always we discuss in the object of the active sentence becomes as the subject of the verb in the passive voice. Already discuss about that. Use of preposition by preposition का यूज करते हैं. कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो हम फर्दर हम डिस्कस करेंगे, कुछ केसेस में हम नहीं करते हैं. The main verb of the active sentence changes into the past participle. Main verb always v3 का हम यूज करते हैं. Already discuss about that. The form of the verb to be say is, are, was, were, being, been is placed before the main verb according to the tense. वो tense के according यूज होएंगी. अगर singular है तो हम is का यूज करेंगे. If there is plural then we will use were. In the same way was, were, being, been. The auxiliary verb is changed according to the new subject in number and person. अब हमारी जो लास्ट वन है द ऑक्सिलरी वर्ब इज चेंज्ड. ऑक्सिलरी वर्ब जो है इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट नया जो सब्जेक्ट हम क्या आया है इन नंबर में, सिंगुलर है, प्लूरल है एंड पर्सन. अकॉर्डिंग टू द पर्सन, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे. अगर आई है तो हमें अगर हैज़ हैव का यूज करना है तो आई के साथ में हैव बीन या हैज़ बीन लगेगा. अगर यहाँ पे अगर हमारा सी है तो हैज़ बीन लगेगा, है ना. नंबर के अकॉर्डिंग भी सिंगुलर है या फिर प्लूरल है. सिंगुलर है सी है तो इज लग जाएगा, प्लूरल है दे है तो आर लग जाएगा. तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है कैसे चेंज होएंगी, ऑक्सिलरी वर्ब इज आर वोज वर, ये कैसे चेंज होएंगी अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, उसके अकॉर्डिंग चेंज होएंगी. तो देर आर ओनली 5 जो हमारे यूजेस हैं रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम जब चेंज करते हैं तो हमारे 5 जो हैं वो इसमें यूजेस इसमें रहते हैं. दीज आर द 5 यूजेस. नेक्स्ट वन, चेंज इन टेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो टेंस क्या हमारा स्टेटस रहता है, टेंस किसके अकॉर्डिंग हमारे चेंज होती है. फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट. व्हाट इज इन सिंपल प्रेजेंट? सिंपल प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू और डज का. किसका यूज करते हैं? डू और डज का हम यूज करते हैं. आई कीप द बेटर इन द फ्रिज. अब यहाँ पे द बेटर, अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे आई कीप द बेटर इन द फ्रिज. वट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस? द बेटर. द बेटर अब हमारा सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट है. सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. किस में चेंज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. अब हम देखेंगे कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है. द बटर, बटर इज सिंगुलर. सो सिंपल प्रेजेंट की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम एंड आर. इज, एम एंड आर. इज, एम, आर है तो इसके अकॉर्डिंग द बटर इज सिंगुलर सो वी विल यूज इज. हम किसका यूज करेंगे? हम इसमें इज का यूज करेंगे. आफ्टर दैट कीप,
हमने क्या किया था फर्स्ट हमारा कि ऑब्जेक्ट का हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, आफ्टर दैट यूज ऑफ टेंस का हम यूज किया, आफ्टर दैट V3 मेन वर्ब किस पे V3 कीप का हमने क्या हो गया kept इन द फ्रिज। तो सिंपल प्रेजेंट हमारा जो डू डज है वो किस में चेंज होगा इज आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। एंड आफ्टर दैट हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है व्हेन विल बी द यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जॉन इज कीपिंग इन माई हाउस। तो इसमें क्या हो जाएगा माई हाउस, इसमें सॉरी इसमें शो नहीं हो रहा है, माई हाउस इज kept बाय जॉन। तो इसमें जो है इज बीइंग सॉरी माई हाउस इज बीइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा, पर उसके साथ में क्या आ जाएगा उसके साथ में बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा बीइंग लग जाएगा। माई हाउस इज बीइंग और कीप का क्या हो जाएगा कीप का kept हो जाएगा। माई हाउस इज बीइंग kept बाय जॉन। एंड आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे क्या रहते हैं हैज और हैव, हैज और हैव। अब हैज और हैव किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे हैज और हैव किस में चेंज हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है हैज बीन हैव बीन। आई हैव kept all your old letters, आई हैव kept all your old letters। तो here what is the object all your old letters, here is the object, so all your old letters that became the subject in the passive voice। Here is the have and all your old letters it's in plural, so have been and kept will be in the kept, so it will change in this way। So present tense simple present that will change in present continuous, and present continuous that will be same with being, and present perfect that will change in present perfect continuous, and present perfect continuous that will no change। And the next one simple past, what is the rule of simple past? In the same way simple past, what is the helping verb in the simple past? That is the did, we use did। Mary kept her schedule meticulously। Up here is what is the object in this Mary kept her schedule meticulously। Mary's schedule was did simple past that will change in the past continuous, and what is the helping verb of past continuous was and were, was and were, that is the helping verb of the past continuous। So simple past that will change in the past continuous। Past continuous the theater was keeping a siege for you। अब past continuous in the same way present continuous की तरह ही सेम इसमें भी past continuous है हमारे, किस में चेंज हो जाएगा past continuous में ही रहेगा, लेकिन उसके साथ में क्या लग जाएगा being लग जाएगा। जिस प्रकार से present continuous में being लगा था सेम here also with use being। The theater was keeping a siege for you। What is the object? हम सबसे पहले इसमें क्या ढूंढेंगे the theater is the subject, the theater here is the subject, was helping verb, keeping main verb, a siege for you that is the object, that is the object। What is the object? A seat, a seat is the object, and was the seat here is the singular, so was लगेगा वर नहीं आएगा। A seat was being, keep का क्या हो जाएगा keeping का kept, और for you a seat was being kept for you। तो this is past continuous that will change same in past continuous with being। Next one is past perfect। He had kept up his training resume for a month। He here is the subject, he here is subject, had here is the helping verb, kept here is the helping verb, kept up his training resume for a month। Here what is the his training that is the object, resume for a month जो है that is the time showing। So here his training that is the object, so we will take it
एज ए सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम इसको क्या लेंगे, एज ए सब्जेक्ट के रूप में। सो हिज ट्रेनिंग रेजमी, हैड था हमारा, पास्ट परफेक्ट में हम हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो दैट विल चेंज, पास्ट परफेक्ट विल चेंज इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड बीन। और कीप हमारा केप्ट अप ऑलरेडी था, केप्ट अप फॉर ए मंथ। जो टाइम होता है वो हम किस में क्या कर देते हैं, उसको लास्ट में हम ऐड कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दैट विल नो चेंज, दैट विल रिमेन सेम। तो हमारा जो पास्ट टेंस है उससे रिलेटेड सिंपल जो पास्ट है वो दैट विल चेंज इन पास्ट कॉन्टिन्यूस। जो डिड है या सेकेंड फॉर्म होती है वो चेंज हो जाएगा वोज और वर में, अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर। Past continuous that will no change, here will use being. Past perfect that will change in past perfect continuous had been में, और past perfect continuous that will no change. And next one is simple future. Simple future, will and shall. In simple future, shall and will, use of the helping verb shall and will. So he will teach me, it is an active voice, he here is subject, will helping verb, teach here is main verb, and me is the object. So here what is the object, me here is object. when we will make it subject we will use here subjective case. हमारे 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। जब हम किसी भी उसमें पर्सन को, प्रोनाउन को हम एज ए सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं तो हम उसका सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। पजेशन में लेते हैं तो हम उसका पजेसिव केस करते हैं, और हम जब उसको ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं तो हम उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो मी किसका, आई सब्जेक्टिव केस है, आई, माई एंड मी, ये 3 है सब्जेक्टिव, आई, माई, मी। अब हमने इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया है तो हमने इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज किया था मी। अब हम इसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट की जगह हम इसको यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह हम यूज कर रहे हैं, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस है व्हाट इज सब्जेक्टिव केस, आई हम इसको यूज करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू सिंपल फ्यूचर जो हमारा टेंस है वो किस में चेंज होएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, विल बी और शैल बी। अब विल बी और शैल बी में हम आई के साथ में क्या यूज करते हैं, विल बी यूज करते हैं या फिर हम शैल बी यूज करते हैं। तो हम शैल का यूज करते हैं तो आई के साथ में शैल बी। हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब दैट विल यूज अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर। नंबर मीन्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, पर्सन हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन कि थर्ड पर्सन। तो हमारा जो आई जो है दैट इज द फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर। सो आई शैल बी, और टीच हमारा किस में चेंज हो जाएगा, V3 टोट में, और हमने यूज किया बाई, एंड आफ्टर दैट ही हमारा किस में है, सब्जेक्टिव केस में हम ऑब्जेक्ट की जगह हम यूज करेंगे, दैट विल यूज इन objective case. So it became, when we change from active to passive voice, I shall be taught by him. So simple future tense change in the future continuous, and future continuous that will no change, that will be same, future continuous change नहीं होगा। And after that next one future perfect। future perfect की helping verb हम यूज करते हैं will, have and shall have। अब future perfect that will change in future perfect continuous, कौन से में चेंज हो जाएगा future perfect, future perfect continuous में। they will have built the house। here what is the subject, they here is the subject, will have here is the helping verb, built here is the main verb, the house here is the object। हमें 5 रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। what are the 5 रूल्स, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड यूज ऑफ बाय। सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें इसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, द हाउस। द हाउस को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, द हाउस।
द हाउस है, इसके अकॉर्डिंग हम विल हैव लगेगा या शैल हैव, तो ही आई और वी के अलावा हम सब के साथ में विल का यूज करते हैं, विल हैव या विल हैव बीन। तो द हाउस विल हैव बीन, ये हमारा वन रूल हुआ। द हाउस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, आफ्टर दैट यूज ऑफ टेंस किया, उसके बाद बिल्ट V3 एंड यूज ऑफ बाय एंड दे, हमारा जो प्रोनाउन था उसको हमने कैसे बना दिया, एज अ ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया, तो हमने उसका ऑब्जेक्टिव केस किया बाय दैम, क्या बनाया बाय दैम। सो इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू दे विल हैव बिल्ट द हाउस विल हैव बीन built by them in this way. So about the simple future will change in future continuous, that will no change, and future perfect that will change in future perfect continuous, and future perfect continuous that will be same, no change. So this is the tense change from active to passive voice. Here are some conditional. Like auxiliary verbs also, can, that will be changed in could or must be, may, might be. In this way, here are in the same way some are conditional present also, conditional present, conditional past and present some infinitive टू जिनमें लगता है, और कुछ perfect जो है infinitive है। तो इन सब से रिलेटेड भी हमारे सिंपल, जब हम वॉइस का कोई एक्सरसाइज होता है, और इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम, they are not asking simple question on simple exercise, we found something different, something exceptional cases. So here are some exceptional conditional present. If you told me, I would keep your secret. If you told me, I would keep your secret. So if you told me, that will be the same, and after that I would keep your secret. I here is the subject, would auxiliary, keep here is the verb, and your secret is the object. So if you told me, that will be the same, and after that your secret, that is the your secret, that is the object, and we will make it subject, your secret. वुड, आफ्टर दैट वुड है, शुड है, इनके साथ में हम बी का यूज लगाते हैं। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वुड है तो वुड बी हो जाएगा, शुड है तो शुड बी हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, माइट है तो माइट बी हो जाएगा। तो इस तरीके से वुड बी, और कीप जो है दैट विल बी कैप्ट, एंड इट विल बी कैप्ट। सो इफ़ यू टोल्ड मी योर सीक्रेट would be kept, and after in the conditional, this is the conditional present की बात कर रहे हैं, after that conditional past, I would have kept your bicycle here if you had left it with me. So I would have kept your bicycle here if you had left it with me. So your bicycle here is the object, we will make it subject, your bicycle. Here would have, that will change in would have been, किस में चेंज हो जाएगा, have been में, would have been, और kept, that is V3, that will same kept. Here if you had left it with me, if you had left it with me, तो ये आगे वाला जो है सेम रहेगा। तो कंडीशनल अगर पास्ट में है तो इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। एंड इन द प्रेजेंट इन्फिनेटिव, सी वॉन्ट्स टू कीप द बुक, सी वॉन्ट्स टू कीप द, सी हेयर इज द सब्जेक्ट, वॉन्ट्स हेयर इज द वॉन्ट्स टू कीप द बुक, हेयर इज द ऑब्जेक्ट। सो द बुक हेयर इज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट, द बुक। The book wants to be kept, wants to be, to है, to be, और keep हमारी जो मेन वर्ब थी उसको क्या बन गया, kept. The book wants to be kept, the book wants to be kept, हमने किस तरीके से, she wants to keep the book, wants to here is the infinitive, to infinitive, तो the book wants to be kept. A perfect infinitive,
Judy was happy to have kept the puppy. Here the puppy, that is the object, and here in the passive voice it will be used as the subject. The puppy was happy. The puppy was happy to have been. अब to have है वो किसमें चेंज हो जाएगा, to have been. The puppy was happy to have been. Keep है वो किसमें चेंज हो जाएगा, that will kept में, kept V3 है ना. तो हमारी इसमें हमने बाय का यूज इनमें हमने नहीं किया क्योंकि टू वाले जो होते हैं उनमें बाय का यूज नहीं होता. आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग दैट बाय यूज मोस्ट ऑफ केसेस इन सम बट सम एक्सेप्शनल केसेस लाइक टू इन दिस ऑर्डर वाले भी हैं कुछ जिनमें सेट द डोर है ना, ओपन द डोर है ना, इस तरीके से. या फिर हम किसी को इनवाइट करते हैं, किसी को हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उनमें हम बाय का यूज नहीं करते कुछ केसेस में. तो हेयर आर सम कंडीशनल, प्रेजेंट कंडीशनल, पास्ट, प्रेजेंट इन्फिनेटिव और प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनेटिव. हमें मेन फोकस हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जब हमें चेंज करना, और मोस्ट ऑफ एग्जाम में यही नहीं होता कि वी विल हैव टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. मोस्ट ऑफ टाइम दे आस्क्ड चेंज फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस. पैसिव से एक्टिव वॉइस में हमें चेंज करना, ऐसा भी होता है. तो हमें सबसे पहले तो हमारा फोकस जो है दैट शुड बी ऑन हाउ टू चेंज. सबसे पहले हमें क्या पता होने चाहिए, 5 हमारे जो चेंजेस हैं कौन से हैं. एक्टिव टू सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट बन जाएगा. बाय का हम यूज करेंगे ऑलवेज V3 का हम यूज करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. टेंस हम कैसे यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ में हम बीइंग लगाएंगे. प्रेजेंट परफेक्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दैट विल नो चेंज. सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस में पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ में बीइंग लगेगा. पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दैट विल नो चेंज. इन द सेम वे फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर दैट विल चेंज इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नो चेंज. फ्यूचर परफेक्ट दैट विल चेंज इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दैट विल no change. And here some conditional present I have already told you. So we first thing we will have to find what is the subject, what is the main verb, which tense here used, कौन से tense का ये sentence है. क्योंकि most of time क्या होता है कि students को ये पता ही नहीं होता कि ये sentence में अगर second form है तो past simple past है या फिर first form है तो simple प्रेजेंट है, और वो कौन सा टेंस जो है कौन से में. क्योंकि हम काफ़ी सारे टेंस भी हम करते हैं, नरेशन जब हम करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, दैट इज़ द डिफरेंट. उसमें सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है. सो वी शुड हैव ए क्लियर पिक्चर इन आवर माइंड. ये हमें हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कौन सा टेंस जो है कौन से उसमें चेंज होता है, कौन से 5 हमारे रूल्स हैं. तो ये अगर मेन हम कर लेते हैं तो देर इज़ कोई ऐसी वो नहीं है कि हमारे रोक हो जाए. ये आपके 4, 5, 6 जितने भी एक्सरसाइज एग्जाम में आते हैं यू कैन गेट आउट ऑफ आउट. एंड इन द नेक्स्ट वी सी नेक्स्ट वन. हेयर आर सम मोर आल्सो. प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जिरेंट के जो होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, और परफेक्ट जो पार्टिसिपल से रिलेटेड है वो कैसे चेंज होते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जिरेंट से रिलेटेड, आई हैव अ फीलिंग that you may be keeping a secret. I have a feeling that you may be keeping a secret. Here a secret क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट. अब I have a feeling that you may, I have a feeling that यहाँ तक तो क्या है, हमारी जो कंडीशनल है वो हमारी आई हैव ए फीलिंग दैट. उसके बाद हम एज इट इज इसको रखेंगे. ए सीक्रेट हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे. और मे बी का क्या रहेगा, मे बी, और उसके साथ में क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा. बीइंग क्यों लग जाएगा, क्योंकि हमारे बी वाले बी किसकी फॉर्म में आती है, इज आर. इज आर है, ये सारे बी की फॉर्म है. तो मे बी है, मे बी का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूटी में है. कॉन्टिन्यूटी में इज आर है या फिर वोज वर है, ये सब हमारे बी में छुपे होते हैं. या तो इज आर होता है, वोज वर होता है. तो ये क्या बन गया, इज बी.
और कीप हमारा जो है वो V3 में हमारा हो गया, तो क्या बन गया, kept इसका बन गया. सो a secret may be being kept. अब ऐसे ही perfect participle. Having kept the bird in a cage for so long, Jade was not sure it could survive in the wild. अब the bird, having been kept in a cage for so long, might not survive in the wild. Having kept. अब यहाँ पे the bird here is the क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, हैविंग kept the bird. तो the bird having के साथ में क्या लग जाएगा, having been, और keep का kept का kept in a cave for so long, Jade was not sure it could survive in the wild. कि so long might not, तो sure was not की जगह क्या हो गया, might. sure not है तो might not हो जाएगा, क्योंकि इसमें श्योरिटी नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटी को दर्शाया गया है. शो here sure मतलब पॉसिबिलिटी, might not sure survive in the wild कि it will be survive और that will not be survive. तो here is the possibility, और possibility के लिए हम may might का हम यूज करते हैं. Here are some sentences when we change from active and passive voice. So यहाँ पे आप खुद भी अपनी एक बार वीडियो को पॉज करके you can do on your own, or you can see after it how it will be changed. He has missed the train. ये एक्सरसाइज है जो हमने रूल रेगुलेशन वो पढ़े, उसमें एक मैंने इसमें प्रोनाउन की अलग से स्लाइड मैंने इसमें आपको शेयर नहीं की, लेकिन मैंने डिस्कस इसमें कर दिया है. उससे पहले एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ. जैसे हमारा आई है वो हमारे किस में चेंज होती है, आई हमारा मी में चेंज होती है, और हमारा जो सी है वो किस में चेंज होती है, वो हमारे हर में चेंज होती है. सी हर उसमें चेंज होती है. हमारा ही जो है वो किस में चेंज होता है, ही में चेंज होता है. किस में चेंज होता है, ही हमारा ही में चेंज होता है. दे हमारा किस में चेंज होता है, दे हमारा देम में चेंज होता है. दे दियर देम सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, हमारे 3 केस इसमें रहते हैं. तो ही सी इट हमारा इट ही रहता है, और दे दियर देम उसमें यूज होता है. तो हमारे 3 केस होते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं. जब हम कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह हम यूज कर रहे हैं तो हम उसका सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं. अगर हम उसका ऑब्जेक्ट की जगह हम यूज कर रहे हैं तो हम उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं. आई माई मी, सी हर ही हिज हिम, दे दियर दम, और हमारा एक वी हो गया, वी और एस है ना. तो ये हमारा हो गया, और आई का बता ही दिया है मैंने. तो ये हमारे कुछ जैसे प्रोनाउन है जो हमारे जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो हमारे ये प्रोनाउन जो है वो भी हमारे चेंज होते हैं. सो टेकिंग द फर्स्ट सेंटेंस, आई took here 5 sentences for the exercise. He has missed the train. Here he, what is the he here is the subject. क्या है यहाँ पे, he subject. Has हमारी क्या है, helping verb. Missed हमारी क्या है, main verb. The train हमारा क्या है, object. क्या है, object. तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हमारे 5 चेंज होंगे, 5 चेंज होंगे. तो हमारा जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन. द ट्रेन हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा. क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा. द ट्रेन. उसके बाद हमने पढ़ा हैज़ हैव हमारा प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. किस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. द ट्रेन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हमें हेल्पिंग वर्ब भी पता होनी चाहिए, हैज़ बीन. अब द ट्रेन हमारा क्या है, सिंगुलर है. सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, द ट्रेन हैज़ बीन. द ट्रेन हैज़ बीन. अब मिस्ड हमारा ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो हमारा क्या आ जाएगा, मिस्ड. और उसमें क्या आ जाएगा, इधर स्पेस नहीं है तो बाय. ही हमारा है
तो ही हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हम यूज करेंगे हिम। तो क्या हमारा सेंटेंस बन गया, द ट्रेन हैज़ बीन मिस्ड बाय हिम। क्या बन गया, द ट्रेन हैज़ बीन मिस्ड बाय हिम। अब द ट्रेन हमारा ऑब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट बनाया, हमारा फर्स्ट चेंज हुआ। फिर हमने प्रॉपर टेंस का यूज किया, हैज़ बीन, ये हमारा सेकंड चेंज हुआ। फिर मिस्ड हमने मेन वर्ब का यूज किया, ये हमारा थर्ड चेंज हुआ। एंड आफ्टर दैट हमने बाय का यूज किया, फोर्थ हमारा चेंज हुआ प्रेपोजिशन। एंड आफ्टर दैट हमने ही को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, हिम, दैट इज योर फिफ्थ चेंज। ये हमारा कौन सा चेंज हुआ, हमारा फिफ्थ चेंज हुआ। सो यू ऑलवेज पुट इन योर माइंड दिस 5 चेंजेस। नेक्स्ट वन, डू दे स्पीक फ्रेंच। नेक्स्ट हमारा चेंज क्या है, डू दे स्पीक फ्रेंच। अब हमें इंटेरोगेटिव है तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें जो पैसिव वॉइस बनाना है तो वो भी हमारा किस में होना चाहिए, दैट शुड आल्सो बी इन इंटेरोगेटिव। किस में होना चाहिए, दैट शुड आल्सो बी इंटेरोगेटिव। अब हमारा ये सब्जेक्ट क्या है, हमारा दे, और स्पीक फ्रेंच ये हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। डू हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा यूज ऑफ मेन वर्ब। अब हमारा जो डू है, डू कौन सा हमारा, डू और डच हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज का हम यूज करेंगे। इज का हम यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्पीक फ्रेंच है ना, सॉरी फ्रेंच हमारा जो है वो हमारा क्या बनेगा, हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो फ्रेंच हमारा क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो इज फ्रेंच, और उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा क्या है, स्पीक। तो हमारा क्या बन जाएगा, स्पोकन। क्या बन जाएगा, स्पोकन। और बाय और दे का क्या बन जाएगा, देम। क्या बन जाएगा, देम, है ना। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या बना हमारा, इज फ्रेंच स्पोकन बाय देम। इज फ्रेंच स्पोकन बाय देम, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हुआ सेकंड। नेक्स्ट वन है स्विच ऑन द लाइट। क्या है, स्विच ऑन द लाइट। अब ये हमारे किस टाइप के सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंस हैं ये हमारे, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव जो हमारे ऑर्डर से, रिक्वेस्ट से, इन सब से रिलेटेड होते हैं उनको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव। तो इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम लेट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं। लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। क्या हो जाएगा, लेट द लाइट बी, और स्विच का क्या हो जाएगा, स्विच्ड, SWITCHED, स्विच्ड ऑन। क्या हो जाएगा, स्विच्ड ऑन। लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। द हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट, है ना। सो हम इस टाइप के जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट होती है, स्विच ऑन द लाइट, तो उसमें हम लेट का यूज करते हैं। लेट से हम स्टार्ट करते हैं, लेट, फिर उसका ऑब्जेक्ट लेते हैं, लेट द लाइट, और उसके बाद बी का यूज करते हैं, और उसके बाद हमारी जो वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, उसको V3 में लगा करके ऑन जो होता है उसके आगे जो होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट वन आल्सो द सेम कैटेगरी, शट द डोर। क्या है, शट द डोर। तो ये भी हमारे क्या है, ये भी हमारे ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले हैं। तो इसमें भी सेम हमारा रहेगा लेट, और फिर ऑब्जेक्ट जो है द डोर ले लिया, और उसके बाद बी हमने लगाया, और उसके बाद शट शट शट, तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, लेट द
डोर, और उसके बाद बी लगा दिया हमने, और बी के बाद V3, क्योंकि सेट 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 तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। तो लेट द डोर बी सेट, लेट द डोर बी सेट। तो इस तरीके से इसमें हम यूज करते हैं, इस तरीके से इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी। आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी। तो इसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, हेयर हमारा जो मी है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। आई हमारा सब्जेक्ट है ना। और टू से हमारे ये स्टार्ट हुए हैं, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड। आई, एक सेकेंड, आई लाइक, टू वाले हैं तो क्या हो जाएगा, आई लाइक, टू के साथ में बी लगेगा, और उसके बाद रिस्पेक्ट है उसका क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड, V3, रिस्पेक्टेड, है ना। सो आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, है ना, क्योंकि हमने नेचुरल है कि ऑडियंस बाय ऑडियंस इसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, आई लाइक रिस्पेक्टेड बाय ऑडियंस, आई लाइक रिस्पेक्टेड बाय द, टू बी रिस्पेक्टेड बाय द ऑडियंस, आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड बाय ऑडियंस। इसमें कई बार 2-3 टाइप से इसमें देते हैं जिसमें सही होते हैं सारे ही। तो ये हमारा इसमें कुछ एक्सरसाइज, कुछ एग्जाम्पल से ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड यू, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इसमें किस तरीके से हम चेंज करते हैं, कौन से 5 हम रूल्स इसमें यूज करते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, और टेंस हम कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउन हम कैसे चेंज करते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा जो है हमारा कंडीशनल जो होते हैं तो हम कैसे चेंज करते हैं, जिरेंट होते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, इन्फिनेटिव है तो कैसे हम चेंज करते हैं, पास्ट इन्फिनेटिव है, इन सब में कंडीशनल हैं, और हमारे इम्पेरेटिव हैं जैसे स्विच ऑन द लाइट है, सेट द डोर है, इन सब केसेस में हम कैसे यूज करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो आपको ये मे बी समझ आ गया होगा जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। और इससे रिलेटेड आई विल मेक वन मोर वीडियो इन दिस ओनली फॉर एग्जाम्पल, जिसमें सिर्फ हम एक्सरसाइज ही करेंगे। तो उससे रिलेटेड आई विल ट्राई वन मोर वीडियो। सो मे यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट, थैंक्स अ लॉट।